Enchanté 4, leçon 5. L'heure du conte. Et what does it mean? L'heure du conte means story time. Let's begin. Dans la chambre de la grand-mère de Dennis. So in Dennis's grandmother's room. Let's see what happens. Madame Leroy. Bonjour mes enfants. C'est toujours un plaisir de vous voir ici. So, hello my kids, it's always a pleasure to see you all here. Bonjour mamie. Hier soir, nous sommes allés au théâtre pour voir une pièce. So, hello grandma. Yesterday evening, we all went to the theater to see a play. Oui, c'est une adaptation d'un conte fantastique. So, it was an adaptation of a fairy tale, of a fantasy tale. Oh, c'est vraiment bien. Les histoires avec des monstres, des génies et des fées. C'est génial. It's really good, the stories with monsters and genies and fairies. It's awesome. Oui, elles sont très intéressantes, ces histoires. On les adore. Yes, they're very interesting, these stories. And we love them. Voulez-vous lire ces histoires? Do you want to read these stories? J'ai beaucoup de livres de contes dans mon armoire. I have a lot of storybooks in my almirah. Je peux vous donner quelques livres. I can give you some books. Oui, bien sûr. Yes, of course. So, the grandma gave the kids different storybooks of their choices. They read the stories and now they're going to have a discussion. Yana, après. Ce conte est super. Quel conte as-tu lu, Denis? So Sophie कह रही है कि जो स्टोरी मैंने पढ़ी, that is amazing. Which one have you read, Dennis? Un trésor perdu, lost treasure. Un groupe d'hommes est arrivé sur une île isolée. Ils ont dû passer par des obstacles et ils ont affronté des monstres. Mais enfin, ils ont trouvé le trésor dans une grotte. So I'm reading The Lost Treasure. There's a group of men who have arrived to an isolated island and they must pass through obstacles and get in face to face with the monsters. But finally, they find the treasure in a cave. Et toi, qu'est-ce que tu as lu? And you, what did you read? So this is a picture telling about the lost treasure. So Sophie says, moi, je préfère les contes des fées, donc j'ai lu Blanche-Neige. So I really like to read stories about fairies and princesses, so I read the Snow White. Les nains sont rentrés chez eux et ils ont rencontré Blanche-Neige. So the dwarfs returned to their place and they met Snow White. Une très belle fille. Et un prince sauvait la belle Blanche-Neige à la fin. And there's a prince in the story who saves Snow White towards the end. And the next story, Philippe. J'aime les aventures, donc j'ai lu l'histoire d'Aladdin. So I like adventures, so I read the story of Aladdin. Il a un singe et un génie très drôle. So he has a monkey and a very funny genie. Aladdin a redonné la liberté au génie. So Aladdin ने genie को freedom दे दी. Ils ont fait un long voyage où ils se sont battus contre des pirates. So they did a very long journey where they fought against the pirates. Puis, can you guess the story from the picture? John read the story and says, et moi j'ai lu Le Petit Chaperon Rouge. And I read The Little Red Riding Hood. Un jour, elle est partie pour aller chez sa grand-mère. Elle a apporté un petit pot de beurre et une galette pour sa grand-mère.
So one day there was a little girl who left from her home to go to her grandmother's place. She had bought a small pot of butter and a small cake for her grandmother. Mer trouvé un loup au lieu de sa grand-mère. So जब दादी के यहाँ पहुंची उसने देखा दादी की जगह पे एक फॉक्स है. Le loup a voulu tuer la grand-mère. So the fox wanted to kill the grandmother. C'est triste, it's sad. La morale de cette histoire est que on ne doit pas faire confiance aux animaux. So the moral of the story is that we need not trust strangers. Okay? So we saw how there were different story tales from our childhood which the kids got to read from the different storybooks the grandmother offered to them. So enough of comprehension part now. Let's move on to my favorite part, la grammaire. Observe. Hier, nous sommes allés. Un groupe de hommes est arrivé. Les nains sont rentrés. Ils ont rencontré. Ils ont fait. अब इतना तो समझ आ गया होगा that we're going to do passé composé. But मैंने ये 3 sentences साथ और ये 2 साथ क्यों लिखे? Because if you look at the structure carefully, let me start from the bottom. Bottom 2 में structure क्या follow हो रहा है? Subject, avoir as a helping verb, past participle and object. Similarly, next में भी subject, avoir and past participle with object. So what is interesting to note is जब हमने पिछले लेसन में avoir के साथ passé composé किया था, we saw that the past participle remains the same with all the subjects. But if you look at the top right here, nous sommes allés, ये s क्यों लगा है extra? Un groupe est arrivé, चलो ये ठीक है. Les nains sont rentrés, अगेन एस लगा है एक्स्ट्रा. और इन सब में जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? एत्र. तो चलिए आज की क्लास में हम फोकस करते हैं ऑन le passé composé avec être. दैट इज passé composé का सेकेंड पार्ट. लेट्स बिगिन. अब इससे पहले मैं स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इस सब पे आऊं, पहले तो हमें यही जानना पड़ेगा ना कि कहाँ यूज करना है être. कैसे पता चलेगा? So, être as a helping verb in passé composé is used with movement verbs. कोई भी verbs जो किसी भी तरह का movement show कर रही हो, and इनको हम याद रखते हैं with this acronym. डॉक्टर मिसेस वॉन्डरट्रॉम, ये वो सारे verbs के फर्स्ट अल्फाबेट से बनाया हुआ एक acronym है जिससे वो verbs को याद रखना आसान हो जाए. ठीक है? A few of them like aller, venir, entrer, descendre, they are all showing some sort of movement, right? Next, we use être as a helping verb with all pronominal verbs. So कभी भी मैं pronominal verbs को passé composé में लिखूंगी, I will write them using être as a helping verb. Like se, lever, s'habiller, ये सारी verbs के साथ helping verb क्या लगेगा? être. Okay? Now, formation कैसे होगी être के साथ? Again, we have the subject, être in present, past participle with object. तो पहले पार्ट बाय पार्ट चलेंगे. पहले हेल्पिंग वर्ब के कॉन्जुगेशन को याद करते हैं. être की कॉन्जुगेशन को je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. हेल्पिंग वर्ब की कॉन्जुगेशन याद आ गई. अब बढ़ते हैं पार्ट 2 पे, द पास्ट पार्टिसिपल्स. अब वैसे तो मैंने पास्ट पार्टिसिपल पिछले लेसन में ही सिखा दिए कि कैसे बनाते हैं रेगुलर पास्ट पार्टिसिपल और कौन कौन से हैं इररेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स जो आपको याद रखने हैं. बट देयर इज वन मोर थिंग व्हेन वी यूज être एज अ हेल्पिंग वर्ब इन passé composé. You have to modify the past participle according to the subject. अब कुछ तो फर्क होना चाहिए ना. être को अब हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं तो être अपने साथ अपने कुछ कमाल तो लेके आएगा.
तो यहाँ वो क्या कमाल लेके आया है कि जब जब मेरे को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा, जो भी पास्ट पार्टिसिपल सेंटेंस में यूज होगा उसको सब्जेक्ट के हिसाब से मॉडिफाई करना है। मतलब सब्जेक्ट अगर मैस्कुलिन सिंगुलर है तो पास्ट पार्टिसिपल रहेगा सेम, il a venu फॉर एग्जाम्पल। बट सब्जेक्ट अगर मैस्कुलिन प्लूरल है तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या लग जाएगा, एक s, il sont venus with an s। सब्जेक्ट अगर फेमिनिन सिंगुलर है तो पास्ट पार्टिसिपल में लगेगा e, l a venue। सब्जेक्ट अगर फेमिनिन प्लूरल है तो पास्ट पार्टिसिपल में लगेगा ई एस, एल sont venus। ये याद रहेगा। तो जब भी हम एत्र एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं हमें क्या याद रखना है कि पास्ट पार्टिसिपल्स को सब्जेक्ट के हिसाब से अकॉर्ड करना है, ई एस या ई एस उनमें ऐड करना है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखें। Le verbe aller au passé composé। तो सबसे पहले मैंने पास्ट पार्टिसिपल बनाया आले का, विच इज अ रेगुलर वर्ब। तो मैंने ई आर कट करा और एक्सेंट वाला ई लगा दिया। एंड देन उस कॉन्जुगेशन को लिखा हेल्पिंग वर्ब के साथ। एंड स्टेप 3 मैंने पास्ट पार्टिसिपल्स को मॉडिफाई किया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्रोनाउन। आवर के केस में सिर्फ 2 स्टेप थे, एत्र के केस में 1 स्टेप एडिशनल बढ़ गया। तो ये देखिए सिंगुलर में क्या हुआ, je suis allé, tu es allé, il est allé, elle est allée, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés, elles sont allées। तो अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैंने यहाँ फर्स्ट और सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल में ब्रैकेट में क्या लगाया। अब देखो सेंटेंस पढ़ के मैं थोड़ी गेस कर पाऊंगी कि वो मैं लड़के की बात कर रही हूँ या लड़की की। सो जब भी एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, इट कुड बी अ बॉय, इट कुड बी अ गर्ल। जहां पर क्लैरिटी हो वहां तो उस हिसाब से मॉडिफाई करना, बट जहां डाउट लगे सेफ साइड पे रहने के लिए ब्रैकेट में अकॉर्ड्स लगाना मत भूलना। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज हमें याद रखनी। चलिए अब आप ट्राई करिए, इन 5 वर्ब्स को कॉन्जुगेट करिए इन पासे कंपोजे यूजिंग वर्ब एत्र विद द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको दिए। करिए जल्दी से, वीडियो को पॉज करके तो जाओगे ना चलो जल्दी, चलो वापस आ गए हो तो अब इन आंसर्स को जरा टैली करो। ये वाली स्लाइड में थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ हमने क्या किया। देशोंद्र वर्ब थी, स्टेप बाय स्टेप चले। सबसे पहले पास्ट पार्टिसिपल बनाया, उसके बाद डिसाइड किया कि एत्र के साथ इसको कॉन्जुगेट करना है, एंड उसके बाद मॉडिफाई किया पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब इल था तो कोई मॉडिफिकेशन आनी नहीं थी, तो कॉन्जुगेशन क्या बनी, इल ए देसों थी। नेक्स्ट पे रोमत्रे, पास्ट पार्टिसिपल बनाया, ई आर कट करके एक्सेंट वाला ई, एत्र की कॉन्जुगेशन आएगी ये हमें पता है। सब्जेक्ट था एल, फेमिनिन प्लूरल, तो मॉडिफिकेशन में पास्ट पार्टिसिपल में क्या लगेगा, ई एस। तो ये क्या बना, एल सो रोमत्रे। सो इसी तरह मैंने बाकी के 3 को भी किया है। अगर आप ध्यान दो बाकी के 3 में क्लैरिटी नहीं थी, पहले 2 में तो पता है मैस्कुलिन है या फेमिनिन, बाकी तीनों में ही नो ज और वो तीनों में ही मुझे नहीं पता कि भैया मैस्कुलिन या फेमिनिन, कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं गिवन। तो मैंने क्या किया, मैंने सेफ साइड पे रहने के लिए ब्रैकेट में अकॉर्ड्स को लगाया। ठीक है, ये अकॉर्ड्स ब्रैकेट में होना ऑल्दो कंपल्सरी नहीं है, इट्स जस्ट अ थिंग जो मैं आपको बता रही हूँ टू बी ऑन द सेफ साइड। ठीक है, नहीं लगाओगे तो ऐसा नहीं है मैम मार्क्स काट देगी, बट लगा दोगे तो कुछ जाएगा भी नहीं ठीक है, चलो इसी के जैसे एक और ट्राई करें। ये ट्राई करिए इन 6 वर्ब्स को कॉन्जुगेट कर। अब देखिए मैं बहुत अच्छी हूँ आई नो,
तो मैंने क्या किया है, इनमें से कुछ 2 वर्ब्स हैं ऐसी जिनके पास्ट पार्टिसिपल इर्रेगुलर है। और मुझे जहां तक लगता है बहुतों को आपको अभी इर्रेगुलर पास्ट पार्टिसिपल याद नहीं होंगे, इसीलिए मैंने ऑलरेडी आपको पास्ट पार्टिसिपल्स लिख के दे दिए। अब आपको वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। पास्ट पार्टिसिपल है, एत्र की कॉन्जुगेशन, सब्जेक्ट के हिसाब से मॉडिफिकेशन। चलिए करिए, जल्दी से वीडियो को करिए पॉज, ट्राई करिए एक्सरसाइज एंड वापस आके यहाँ से अपने आंसर्स को करिए टैली। एग्जैक्टली सेम स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर बच्चे गड़बड़ करते हैं, जब लग आसन लेफी आ गया, मैम सब्जेक्ट प्रोनाउन तो था ही नहीं, तो क्या आपको नहीं पता कैसे करना है? लेग आसन थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी इल वाली कॉन्जुगेशन, लेफी थर्ड पर्सन फेमिनिन प्लूरल यानी एज वाली कॉन्जुगेशन, वही तो किया है। ठीक है, चलो एक और एक्सरसाइज करें। चलिए लास्ट है पक्का, ठीक है, लास्ट 5 वर्ब्स ट्राई करिए इनको। भैया क्यों भूल जाते हो वीडियो को पॉज करना, करो जल्दी। ओके वापस आ गए हो तो अब टैली कर लो अपने आंसर्स। ठीक है, अब मैं फिर से सेम प्रोसेस रिपीट नहीं कर रही, अब तक तो आई एम श्योर यू हैव गॉट अ हैंग ऑफ इट कि कैसे करना है। ऑलराइट, सो अब बाद मैं आपको वो लिस्ट दिखाती हूँ वर्ब्स की जहां जहां एत्र एज एन ऑक्सिलरी यूज होता है। ये पहली 5 वर्ब्स डॉक्टर, मिसेस, ये अगली 6 वर्ब्स वॉन्डर, एंड ये अगली 5 वर्ब्स त्रॉम्प। तो मैंने आपको डॉक्टर, मिसेस, वॉन्डर, त्रॉम्प सिखाए बिना इन एक्सरसाइजेस के थ्रू उन सारी वर्ब्स से इंट्रोड्यूस करा दी। ये लिस्ट तो बस एज अ फॉर्मेलिटी लिख के दी है ताकि उन वर्ब्स को मीनिंग आप जान जाए। तो ये जो अभी हमने 16 वर्ब्स की, डॉक्टर, मिसेस, वॉन्डर, त्रॉम्प, ये वो 16 मूवमेंट वर्ब्स हैं जिनके साथ एत्र एज एन ऑक्सिलरी यूज होता है। आ गया समझ? चलिए आप जितनी भी लर्निंग्स अभी तक की हैं उनको इस एक्सरसाइज में करिए टेस्ट। ये सारी वो वर्ब्स हैं जिनके साथ एत्र एज अ हेल्पिंग वर्ब आता है। तो वीडियो को करिए पॉज, जहां हेल्प की जरूरत हो अपने नोट्स या बुक की हेल्प लो इर्रेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स देखने के लिए, एंड ट्राई करो ये एक्सरसाइज। ठीक है, वापस आते ही अपने आंसर्स को इन आंसर्स के साथ कर लेना टैली। ठीक है, तो इसके बाद अब आई डोंट थिंक आपको पासे कंपोजे में डिफिकल्टी होनी चाहिए, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस और इतने सही से रूल्स को समझ के भी अगर आप गड़बड़ करो तो मुझे बहुत बुरा लगेगा कि मैं सही से नहीं समझा पाई। ठीक है, तो अब हम आबुआर वाले पासे कंपोजे भी कर चुके हैं और एत्र वाले भी, तो चलिए आगे बढ़े। ले पासे कंपोजे अला फॉर्म नेगेटिव। तो क्या अब एत्र वर्ब में जब पासे कंपोजे होगा तो नेगेशन में कोई चेंज होगा क्या? नहीं, सेम पहले जैसा। वी विल पुट न एंड पा विद द हेल्पिंग वर्ब, और इस केस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? एत्र। पास्ट पार्टिसिपल को फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला न पा के आ जाने से। ठीक है, लाइक एल ए तारीवे अलफ का नेगेटिव क्या होगा? एल ने पा अरीवे अलफ। इसी तरह वो zit entre à la cinéma का नेगेटिव क्या होगा? वो n'êtes pas entré le cinéma। सो यू सी सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पिछले लेसन में किया, बस इस बार एत्र एज अ हेल्पिंग वर्ब के साथ। अगला देखें, ले passé composé à la forme interrogative। सो यहाँ पर भी क्या होगा? वी विल इन्वर्ट द प्लेस ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? एत्र एंड द सब्जेक्ट। पास्ट पार्टिसिपल फिर से रहेगा अनचेंज्ड, लाइक il só venu dans le matin बनेगा
Samtidig dole mata. इसी तरह Elena etale alekol. तो सो रफ सेंटेंस बनाते हैं जल्दी से. एल ए आले डॉट डॉट डॉट. तो क्वेश्चन क्या बनेगा अब? एलेना एतल आले आलेकुल. ओके, तो चलिए एक बार एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को एक साथ देखें. We'll be conjugating the verb venir in passive composé using the helping verb être and doing conjugation in all three verbs. So आप यहाँ देख सकते हैं एफर्मेटिव में भी मैं नहीं भूली पास्ट पार्टिसिपल्स को मॉडिफाई करना. तो आप यहाँ देख सकते हैं चाहे केस कोई भी हो, एफर्मेटिव, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, एत्र हेल्पिंग वर्ब के साथ एक चीज जो मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती वो है हेल्पिंग वर्ब्स को मॉडिफाई करना अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. और ये हर केस में होगा, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव. ठीक है, आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आ गया. चलिए आखिरी कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, les verbes transitifs et intransitifs. अब अक्सर ये कॉन्सेप्ट ग्रेड 9-10 में कराया जाता है जिसकी वजह से स्कूल्स में ये डिलीट करा देते हैं टॉपिक. सो बिफोर यू वॉच दिस वीडियो आगे तक मेक श्योर आपके स्कूल में ये टॉपिक आ रहा, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है टू अंडरस्टैंड, बट इफ यू वांट टू डू इट फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग प्लीज गो अहेड. ओके, सो we'll be noting this one verb, passe. So the verb passe, when it means to pass by a place, it is conjugated with être. तो जब वर्ब पासे को मैं एक ऐसे सेंटेंस में यूज कर रही हूँ जहां उसका मतलब हो टू पास बाय अ प्लेस, तब पासे कंपोजे में हेल्पिंग वर्ब लगेगी être. बट when it means to pass time or pass an object to someone, it is conjugated with avoir. ये कैसे? मतलब जब सेंटेंस में पासे का मतलब कुछ और आ रहा हो, लाइक मैं टाइम पास I'm just passing this hour somehow, या मैं je passe le stylo à Marc, so I'm passing the pen to Marc, तो इन केसेस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? avoir. क्या ये मीनिंग पे डिपेंड करेगा वर्ब की या कोई रूल है इसके पीछे? सो लुक एट दीज टू एग्जाम्पल. स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ. Elle est passée par l'école, so she passed by the school. So she passed by the school, स्कूल के आगे से गुजरी. तो मैंने यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया? être. Elle a passé le livre, she passed the book. तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ avoir. अब ऐसा क्यों? सी, अब इन कॉन्सेप्ट्स को हम कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड intransitive verbs. So transitive verbs will only make sense if there is an object in the sentence, whereas intransitive verbs will work without an object as well. तो पहले हमें ये डिफरेंस क्लियर करना है, इससे पहले मैं आपको एग्जांपल समझाऊं. एक ट्रांजिटिव वर्ब वो है जिसमें सेंटेंस का मीनिंग एक ऑब्जेक्ट के होने के साथ ही कंप्लीट हो. ठीक है, जैसे पासे वाले एग्जाम्पल पे वापस आते हैं. आई पास द बुक. अगर मैं यहां सिर्फ किसी को बोलूं आई पास, तो क्या वो खुद से समझ जाएगा कि मैंने बुक पास की? नहीं ना. तो इस केस में पास से इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, whereas elle est passée par l'école, she passed by the school. she passed by, तो when I say she passed by, it means वो वहां से गुजरी. इस केस में ऑब्जेक्ट नहीं भी था तो समझ आ गया कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो वहां से गुजरी. तो ऐसी वर्ब्स होती हैं इनट्रांजिटिव इन नेचर. तो जब भी कोई वर्ब का ट्रांजिटिव सेंस है या वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उस केस में हेल्पिंग वर्ब होता है avoir. और जब भी वो वर्ब का एक इनट्रांजिटिव सेंस है, यानी उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है सेंटेंस में,
तब हेल्पिंग वर्ब होता है एत्र। ठीक है, लुक एट दीज एग्जांपल्स राइट। descends you, Mrs. Kelly. I got down the stairs. I need the object in this sentence and that is why I used avoir. Je suis descendu du train. I got down from the train. तो अगर मैं सिर्फ इतना भी बोलती je suis descendu, I got down, मैं उतर गई, लोग समझ जाते हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ और इसीलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगा, एत्र। अगला एग्जाम्पल देखिए, j'ai rentré les livres, I have returned the books. I have returned, अरे returned what, क्या रिटर्न किया, I need something right in the sentence, so I used avoir. je suis rentré de l'école, I have returned. तो कई बार स्कूल से आके हम बस इतना बोलते हैं ना, मैं आ गई हूँ, je suis rentré. So this does not necessarily need an object, so I used être. आई नो मैं बार बार सेम चीज रिपीट कर रही हूँ, बट आपको एक चीज ऑब्जर्व करवा रही हूँ कि avoir एज अ हेल्पिंग वर्ब तब लगता है जब वर्ब के तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट हो। एत्र एज अ हेल्पिंग वर्ब लगता है जब वर्ब के तुरंत बाद एक प्रेपोजिशन। आप इसे इस तरह से याद रखो, कभी गलती नहीं करो। अगले में भी देख लो, नहीं मान रहे मेरी बात तो। avoir एज अ हेल्पिंग वर्ब कब लगा, जब वर्ब के तुरंत बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। whereas être एज अ हेल्पिंग वर्ब कब लगा, जब वर्ब के तुरंत बाद एक preposition। अब ज्यादा बेटर लग रहे हैं ना, इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। चलिए आगे बढ़े। तो कौन कौन सी है वो वर्ब्स जिनके डुअल मीनिंग्स होते हैं? So there are 6 verbs with which we can either use être or avoir. Descendre, rentrer, monter, retourner, sortir and passer, यानी डॉक्टर मिसेस पी। सो वो हिंट जो मैंने अभी बताया वो स्लाइड पे अब लिख के दे रही। When verb is followed by a direct object, use avoir. Whereas when verb is followed by a preposition, use être. ठीक है, सो डॉक्टर मिसेस पी के साथ बस इन रूल को याद रखिएगा। चलिए अब ट्राई करिए ये एक्सरसाइज। ये है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स की, राइट? तो आपको क्या ध्यान रखना है, ब्लैंक के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ avoir एज अ हेल्पिंग वर्ब होगा, पर ब्लैंक के तुरंत बाद अगर एक प्रेपोजिशन है, यहाँ मैंने गलती कर दी, यहाँ एक एक्सेंट आएगा विच मेक्स इट द प्रेपोजिशन टू या एट, राइट? तो अगर ब्लैंक के बाद एक प्रेपोजिशन है तो être एज अ हेल्पिंग वर्ब आएगा। अगर इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को करोगे कभी गलती नहीं। ठीक है, चलिए आई होप आपने एक्सरसाइज कर ली होगी अब तक। नहीं करी है तो वीडियो को करो पॉज करके जरा लौटो और आंसर्स को करो यहां से मैच। ठीक है, एंड हाँ वो मत भूल जाना कि जहां जहां एत्र यूज कर रहे हो वहां पास्ट पार्टिसिपल अकॉर्ड भी होंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों जिनको भूलना नहीं है, इन सबको साथ लेके आगे बढ़ना है। ओके, तो चलिए लेसन खत्म करने से पहले एक फाइनल एक्सरसाइज। यहाँ पे यू हैव टू कॉन्जुगेट द वर्ब्स इन ब्रैकेट विथ ईदर एत्र और avoir एज अ हेल्पिंग वर्ब। बट ये वो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नहीं है, ये सम टोटल है। लाइक दिस इज अ सम अप एक्सरसाइज कि आपको पासे कंपोजे कितने अच्छे से समझ आया। सो यू नो एत्र इज यूज्ड विथ डॉक्टर मिसेस वॉन द थ्रॉन, उसके अलावा सारी वर्ब्स के साथ avoir यूज होता है। आई नो अभी याद तो सब कुछ नहीं हुआ है, तो बुक की हेल्प लेके ही सही बस इस एक्सरसाइज को करो ट्राई, ताकि आपको खुद को भी भरोसा हो जाए कि हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है ना। बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो बिल्कुल लापरवाही नहीं या बिल्कुल आलस मत दिखाना कि नहीं यार बाद में कर लेंगे, नहीं वो बाद में कभी आएगा ही नहीं। चलो चलो करो वीडियो को पॉज एंड कंप्लीट करके ही लौटना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए टैली करिए अपने आंसर्स को मेरे आंसर्स के साथ। एंड या मैं फिर से यही बोलूँगी, पासे कंपोजे, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, अदरवाइज भूल जाओगे।
और अगर भूल गए तो पेपर में गोल कराओ, ठीक है। एंड मैं नहीं चाहती कि वो आप करो। सो इसी के साथ ये लेसन हुआ समाप्त। से लेफांजी लेसन, आई मीट यू नाउ इन द नेक्स्ट टर्म। हमारे 5 लेसन्स इस टर्म के हो गए हैं कंप्लीट। Bonne chance for tous les examens. All the best for all your exams. Do well. And yeah, I'll see you later. Au revoir.